Okay, so guys, while you do social media campaigns, and last time when we met, I had shown you some social media campaigns and what do they look like, and how do you create social media campaigns which don't take a lot of funds but are interesting enough, are intriguing enough to ensure that people keep coming back to your social pages. While we looked at those campaigns, there is one more thing that you need to take care of. That every time you run a social media campaign, you shouldn't end up infringing someone else's rights, or you shouldn't end up doing something which will offend somebody. कभी कभी क्या होता है, as a brands we end up writing things and we don't realize that what we've written might be detrimental to the views of somebody else, and it may offend somebody very badly. Now so this can have a very negative effect on your brand. Recently we've seen what has happened to TikTok. Suddenly everybody is talking about how there are religious sentiments that are being propagated through TikTok, and why uh, you know the entire country has gone against the app in support of people who don't agree to those sentiments, and how the ratings have fallen for the app. Now this is completely customer generated. Good things can happen to your brand, bad things can also happen to your brand, and that's the nature of virality. Good things can become viral, bad things can become viral. So it's important as brands, and while some of you are relatively running brands which are relatively big, relatively known. Some of you will end up making your brand relatively big. It's important for you to be brand neutral, brand cautious all the time. You have to write things which do not offend other people. Okay, so the first point is you need to track what is being said about your brand. Tracking what is being said about your brand is very simple. इसमें दो चीजें हैं. You have to use keywords which people will use to define your brand, or keywords that people use when they search for your brand. आपको एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स बनानी है कि मेरे ब्रांड को मेरे ब्रांड नेम से जानते हैं, मेरे प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, मेरा एक पुराना प्रोडक्ट हुआ करता था उसके नाम से जानते हैं, मेरे फादर के नाम से जानते हैं, मेरे फैमिली बिजनेस के नाम से जानते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोस कीवर्ड्स. Then you have to track wherever these keywords get published on the internet. You should come to know, and you should come to know whether the things that are being said where these keywords have been used are being said in the positive frame or in the negative frame, or maybe in a neutral frame as well. Okay, so ये tracking होती कैसे है? Now there are tools which help you track these keywords. तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको एक clean list of keywords बनानी है which is connected to your business. My product, my brand, my family business, my previous products, whatever thing a human being could possibly think of when he searches for you on Google. Okay, now क्राइसिस मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. अगर ये ट्रैकिंग करके आपको पहले से पता चल जाए कि आपके बारे में कुछ नेगेटिव कहा जा रहा है, then it's the best to already address it. In most cases, whenever something is being said about you, there is some keyword, किसी ने कुछ पैराग्राफ लिखा है, ब्लॉग किया है या सोशल मीडिया पे लिखा है, which is detrimental to your brand, it's a good idea to first go to that person and close that issue there and there offline. Don't try to solve a lot of issues online. The best you should try and do online is just respond to every query to say that I understand that you've had an issue. Please share your details so that we can get in touch with you and we can solve your problem. You must have seen a lot of brands do this, and you know why brands do this? Because brands are constantly trying to move the conversation from online to offline. The idea is that don't give long solutions online, give longer solutions offline. इसका reason ये है because when you give on long solutions online and you know that solution doesn't fit them, or the solution that you've given does not solve their problem completely, they will take screenshots and they will do everything to malign you again. A guy who's upset with your brand will try to malign you again, saying that even online they give bad advice. Which is why move the conversation to an offline conversation. When I say offline, matlab ya to meet the person one on one or do it on the telephone. Okay, why crisis management is important? Because prevention is better than cure. अगर आप इसको पहले से देखोगे नहीं कि क्या क्या नेगेटिव स्टोरी पक रही है जो बहुत बड़ी नेगेटिव स्टोरी बन सकती है, if you don't preempt it, if you don't foresee it, then it might get out of control very soon. Analyze what is being said. Are people saying this
So you have to analyze when people are saying negative things about your brand online, you have to analyze why are they saying that. Is it is it a problem with your product? Is it a problem with that particular person? Is it a problem with the whole economy and the ecology in which your product doesn't fit? Is it a problem with your brand ethos के मेरे brand की thinking ही लोगों को पसंद नहीं आती है? कभी कभी होता है, कुछ brands are very brash in the way they think, and it shows in all their creatives, in their tonality, in their language, and a lot of people get offended, saying कि यार ये brand तो बहुत brash है. So first identify, analyze what is being said, engage positively in a conversation. So tell people that I understand something wrong has happened. If it's a big crisis, if you know they're saying that we'll sue you, there's a court case because of your product, something very detrimental has happened to you, to our life, then just politely say that, well, I'm investigating this. We are investigating this. Let us come back with some foolproof solutions. Till then, please share your details so that we can identify these problems in better clarity with you. ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम कोई भी कभी कभी हमको भी ना थोड़ा टाइम लगता है चीजें सोचने के लिए. सो इट्स अ गुड आइडिया टू बाय सम टाइम. टेल देम, ask them for their details, tell them we are investigating this, buy some time and identify a good political solution. Always engage positively in a conversation. Now consumer चाहे कितना भी गलत हो, don't try to be extremely brash online, because जब एक नया पर्सन ये कॉन्वर्जेशन पढ़ता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी उस नए पर्सन को इस कॉन्वर्जेशन का बैकग्राउंड नहीं पता है, but they might just see your tweet, your post, your feedback, and they might just see this brand is really rude. So the idea is, as a brand, always try to be as positive as possible. Politely point out misunderstandings. Sometimes people malign you. Sometimes people say incorrect things because कहीं से तो सुना है कि ये brand ऐसे करता है. So politely say that, let me help you with some facts. Show them a link saying that no, what you are saying is incorrect. This has already been published by a third party before, and these are the facts around it. Stay calm, professional, and respectful. Never lose your temper. Never lose your temper. Even don't write an email when you've lost your temper. Don't do anything online गुस्से में, क्योंकि जब आप गुस्से में करते हो तो बहुत बार आपसे इमोशनल गलतियां हो जाती है. Respond to people when they raise a complaint about your product. It's mandatory that you respond to people. हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, कोई बहुत सारे लोग कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं which doesn't really matter, वो लोग भी मस्ती में बोल रहे हैं. Those things you can ignore, but if they genuinely have a product problem, you have to respond. For example, अगर कोई मुझे ये बोलता है कि I work in the entertainment industry, अगर कोई मुझे ये बोलता है कि हमने इसका ऑनलाइन पैक खरीदा था बट ये पैक चल नहीं रहा है, आई इंश्योर दैट माई टीम रिस्पॉन्ड्स टू देम इमीडिएटली कि टेक इश्यूज हैं, क्यों है. हाँ, कभी कभी मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ जब लोग ऐसी बातें करते हैं कि अरे यार अमिताभ बच्चन की और पिक्चर दिखाओ. बहुत सारी हैं, इजीली अवेलेबल हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो कभी कभी हम छोड़ भी देते हैं. बट इन मोस्ट लाइकलीहुड वी रिस्पॉन्ड टू एज मेनी इश्यूज दैट पीपल हैव, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. इफ पीपल आर डूइंग मलेशियस थिंग्स, अगर कोई जबरदस्ती कुछ नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है आपके साथ, then counter it. Identify ये क्यों करने की कोशिश कर रहा है. Jeff Jarvis is a very important case. It's one of the biggest case studies in online reputation management. कब मौका मिलेगा तो पढ़िएगा. This is about Dell as a company and a blogger. काफी पुराना केस एक्चुअली, 20-25 साल पुराना है. But a blogger wrote blogs about how bad his Dell machine was, and the case became so big that Dell को revenue loss होने लगा उस blog के वजह से. And Dell turned the story around by starting a website where it started taking more negative feedback from people and said कि आप अपना feedback बताइए, हम ये corrections करेंगे product में. And then they finally came out with products which had people's feedback incorporated, and they won people's hearts again. Now, why do you first need a listening tool? आप Google Alerts भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसे ही फ्री टूल्स ऑन द इंटरनेट फॉर लिसनिंग लिखेंगे तो बहुत सारे फ्री टूल्स आ जाएंगे, आप वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप एक पेड टूल भी ले सकते हैं. Google Alerts फ्री है, बहुत सारे ऑनलाइन दूसरे लिसनिंग टूल्स फ्री हैं. पेड टूल्स विल कॉस्ट यू एनीथिंग बिटवीन 20,000 a month to 3 lakhs. Depends on how many negative complaints
come for a brand like yours. But normally brands end up paying 20, 30, 40,000 a month for this. It depends on how big is your brand. It depends on how important it is for you to respond to these queries. It depends on how many negatives, complaints are raised about you on the internet, and how much does it affect your business. If if all these points, if you analyze all these points and you realize कि नहीं यार अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा ब्रांड के लिए बहुत ही detrimental होगा, सेल्स में बहुत फर्क पड़ेगा, then you should get into answering each of these questions, and you should get into then identifying a tool for listening. Why you should listen? Because complaints can go viral. One guy complains, then उसके ऊपर कोई और लिखता है कि अरे ये मेरे साथ भी हुआ, फिर तीसरा आदमी बोलता है अरे मैं ये ब्रांड खरीदने वाला था, अच्छा हुआ तुम लोगों का पढ़ लिया, नहीं खरीदूंगा. All that starts to happen. फीडबैक इज नेसेसरी. फॉर एग्जाम्पल कुछ इंडस्ट्रीज में तो फीडबैक बहुत क्रिटिकली लिया जाता है, जैसे मूवी प्रमोशंस. आजकल जितने भी बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो मूवीज के प्रोडक्शन हाउसेज ट्रेलर्स डालते हैं और सबसे पहले यही एनालाइज करते हैं कि ये ट्रेलर हिट हुआ कि नहीं, ये ट्रेलर चला कि नहीं. इससे इमीडिएटली पता चल जाता है कि जो फाइनल पिक्चर आने वाली, जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसके लिए रिएक्शन कैसा होगा. बहुत सारी कंपनीज प्रोडक्ट इनोवेशंस करती हैं बेसिस फीडबैक. दे कीप चेंजिंग देयर प्रोडक्ट. जैसे मैंने आपको डेल का एग्जांपल दिया. इट्स वेरी क्रिटिकल फॉर सम इंस्टीट्यूशंस लाइक फाइनेंस एंड बैंक्स. आई नो फॉर सम बैंक्स इट becomes as bad because a lot of consumers end up putting up their password details on the internet, and it can be so dangerous. Imagine, you know, कभी कभी कंज्यूमर खुद ही लिख देता है माय सॉरी, एंड बहुत सारे कंज्यूमर को नहीं समझता है, दे आर जस्ट टू नाइव, और होती है ऐसी मिस्टेक्स वेयर दे एंड अप पुटिंग देयर पासवर्ड इटसेल्फ ऑन द बैंक्स फेसबुक पेज सेइंग कि माय अकाउंट इज नॉट वर्किंग विद दिस यूजर लॉगिन एंड दिस पासवर्ड गिवन टू मी थ्रू पोस्ट. And it can be so detrimental to the consumer, and then it comes back to the bank as well. So in these industries it becomes extremely critical. Very good example is Anand Mahindra. They do a lot of listening, and you will see once in a while Anand Mahindra only tweets back to a consumer saying that अरे आपकी गाड़ी खराब हो गई है, ठीक है मैं किसी को भेजता हूँ, and he actually does that. Now it just creates that perception that the brand cares for you. So आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं. You can do some listening for your consumers and create an entire PR story by giving him a wow experience. What most tools will give you is also sentiment analysis, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपके ब्रांड के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्या हैं. सो what basically these tools do is, ये खाली आपके लिए ये नहीं आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके लिए क्या बोला जा रहा है बेसिस द कीवर्ड्स दैट यू आर सेइंग, बट उन कीवर्ड्स का एनालिसिस भी करते हैं टू आइडेंटिफाई उस सेंटेंस में जहाँ पे कीवर्ड आया है, is that sentence written under a positive perception or a negative perception. And they also try to do a percentage analysis to say, of all the things that are being said about you as a brand, how many conversations are positive and how many are negative. Okay. They say this is how crisis management happens, or crisis begins to grow. In the first 5 hours it starts appearing on Twitter, on smaller blogs, etc. WordPress, in 5 to 8 hours, the same crisis, if there is something negative about you, it can reach Google search. It will start appearing on Facebook. In about 8 to 15 hours, it will reach rapid sharing. That means people will start sharing it across all social mediums. There will be YouTube news around about it. Yahoo News में दिखने लगेगा, इंटरनेट पब्लिकेशन में दिखने लगेगा. एंड एक दिन में तो क्राइसिस इतना खराब हो सकता है कि इट कैन रीच मेन स्ट्रीम मीडिया, विच मीन्स टेलीविजन पे भी आपकी न्यूज नेगेटिवली आ सकती है. सो क्राइसिस के लिए रेडीनेस रखनी है हमें एज अ ब्रांड. नाउ व्हाट इज इट दैट वी नीड टू डू. कॉन्वर्सेशंस जो आपके ब्रांड के लिए होते हैं, दे विल बी इन 2 phases. या तो वो आएगा न्यूज चैनल में आएगा, न्यूज़पेपर में आएगा, किसी ना किसी टेलीविजन या ऐसे मीडियम में आएगा. Give it out to your PR team. Let your PR team take care of this. They know how to speak with journalists, etc., and take care of the crisis. या फिर अगर आपका PR टीम नहीं है तो PR एजेंसी हायर करिए, which will help you navigate the crisis. The second is general public. Now, general public 2 type की होती है, who will talk about you. And the first part, while I was saying news and public channels will be more on television. If it's online, general public 2 type की होती है. एक होता है non-influencer.
ये वो आदमी है जिसके ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, इसके फॉलोअर्स भी नहीं है, एंड ही इज आल्सो अनेबल टू इंस्टिगेट अदर पीपल इनटू सेइंग बैड थिंग्स अबाउट यू. ओके, they will non-influencers are those people who will use social media to vent anger, sarcasm. उनका कोई पर्टिकुलर रीजन होता है कि ये ब्रांड खराब है, मेरा एक्सपीरियंस एक बार खराब था, या फिर मेरी दीदी ने खरीदा था, मेरी बहन का एक्सपीरियंस खराब था, दैट्स व्हाई आई बैजर देम ऑनलाइन. They don't actually, non-influencers don't dent the brand's image a lot. That's because, you know, in 2 to 3 days their conversations are off social media, no one comes to know about it. वो अपने आप conversation मर जाता है. Nothing, you know, social media where most things are fads, they don't last beyond 2 3 days. The second type is influencers. आप ये opposite है non influencer का. आपको पहले identify करना है ये है कौन. These guys are influential because they have a large following on social media. Now, there could be two things. Their social media influence could be high by the virtue also of their fans, but also by the virtue of their position, background, experience, etc. For example, a guy who's saying negative things about you, he does not have a lot of followers on social media, but is a politician. तो फिर ये रेड अलर्ट है, बिकॉज ये ऑफलाइन मीडिया में बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है. या फिर आपके बारे में नेगेटिव लिखा है, लेट्स से किसी बड़ी कंसल्टिंग फर्म में, the guy who's writing the article about you or who's saying negative things about you does not have a lot of followers, but let's say for example it's a his designation is that he's an analyst at ENY. तो इनको एड्रेस कैसे करना है? सबसे पहले आप ये देखिए, अगर नॉन इन्फ्लुएंसर है, ज्यादा फॉलोइंग नहीं है उसकी, नेगेटिव चीजें लिख रहा है, सॉरी अबाउट योर कंसर्न लिख के प्लीज शेयर योर डिटेल्स करके छोड़ दीजिए, लीव द कॉन्वर्सेशन. वो भी ज्यादा यू नो परस्यू नहीं करेगा इस कॉन्वर्सेशन को, एंड यू कैन लेट इट गो. बट आपको एक और चीज करनी चाहिए. एक इन्फ्लुएंसर के बारे में ये भी एक नॉन इन्फ्लुएंसर के बारे में ये भी देखिए कि क्या वो कोई पोटेंशियल इन्फ्लुएंसर इन द मेकिंग तो नहीं है. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल यूज, हु आर नॉन इन्फ्लुएंशियल पीपल, यूज दीज थिंग्स टू बिकम इन्फ्लुएंसर्स. यू नो, यू सी अ लॉट ऑफ पीपल इन मेन स्ट्रीम मीडिया जो किसी कंट्रोवर्सी के वजह से सेलिब्रिटी बन गए. तो आप ये आइडेंटिफाई करिए कि ये ऐसा आदमी तो नहीं है जो यू नो एक सेलिब्रिटी बनने की कोशिश कर रहा है आपके ब्रांड को टार्निश करके. या फिर इज देयर अ कॉन्वर्सेशन थ्रेड दैट इन्वॉल्व्स नॉन इन्फ्लुएंसर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स. इधर गलत लिखा हुआ है, इट शुड बी इन्फ्लुएंसर्स एक्चुअली. एक ऐसा कॉन्वर्सेशन, वो एक ऐसा आदमी तो नहीं है जो आपके बारे में नेगेटिव लिखता है, आपके ब्रांड के बारे में नेगेटिव लिखता है और फिर सारे सेलिब्रिटीज को टैग करता है. बहुत सारे लोग ये करते हैं, ब्रांड्स के बारे में नेगेटिव लिखते हैं और फिर उनका जो ब्रांड एंडोर्सी होता है, सेलिब्रिटी होता है, उसको टैग कर देते हैं. या फिर दूसरे ऐसे लोग जो उनको पता है कि और ऑल्सो एंटी योर ब्रांड, जिनका बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, उन लोगों को टैग करते हैं. दे ट्राई टू टैग मोर एंड मोर पीपल टू क्रिएट एन इशू आउट ऑफ इट. एक्शन पॉइंट ये है कि अगर ये ऊपर की ऐसी चीजें उल्टी सीधी नहीं कर रहा है, इट्स जस्ट अ प्लेन जेन नॉन इन्फ्लुएंसर कंप्लेनिंग, ड्रॉप हिम अ नॉर्मल मैसेज एंड अवॉइड अटेंशन एज फार एज पॉसिबल. ओके. हाउएवर, अगर वो ये सब चीजें कर रहा है, वो टैग कर रहा है इन्फ्लुएंसर्स को, इस स्टोरी को बड़ी बनाने की कोशिश कर रहा है, then you need an intervention strategy. Okay. Now I will go to क्या करना चाहिए अगर वो इन्फ्लुएंसर है. सबसे पहले तो ये देखिए कि why is he talking negative things about you. उसका मोटिव क्या है? पास्ट हिस्ट्री है, उसने आपका ब्रांड से कुछ खरीदा है, जो प्रोडक्ट नहीं चला, आपको इसके बारे में पता है, या उसकी कोई पर्सनल ग्रज है आपसे एज द ओनर ऑफ द ब्रांड, सिंपली मनाइन करने की कोशिश करता है. या बहुत सारे लोग होते हैं जिनको यू नो sarcastic होने में मजा आता है. They like to be sarcastic on the internet because it just portrays them in a more cooler light. You know, when I make smart ass sarcastic statements on other people, I appear cooler to my friends. So पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए अगर इन्फ्लुएंसर है ये क्यों कर रहा है. अगर ये कूल बनने के लिए कर रहा है और ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर है, बहुत फॉलोइंग है, तो ये एक दो बार ही करेगा. दैट्स बिकॉज you know, he's anyways an influencer. He's not trying to be famous by being sarcastic at you. बट बाकी चीजें जरूर देखिए. क्या उसकी कोई पर्सनल हिस्ट्री है, कुछ ग्रज है, कोई पर्टिकुलर रीजन है जिसकी वजह से वो आपके पीछे पड़ा है. उसका लेवल ऑफ इंटरेस्ट ना दो टाइप का होगा. देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ पीपल विल ट्राई टू मेलाइन यू. और आपको ये आइडेंटिफाई करना है ये आदमी किस टाइप का है, परसिस्टेंट है या नॉन परसिस्टेंट. परसिस्टेंट का मतलब ये हो गया कि ही कम्स बैक टू से नेगेटिव थिंग्स अबाउट यू अगेन एंड अगेन. नॉन परसिस्टेंट वो आदमी है जो बार बार आपके बारे में नेगेटिव नहीं बोलता है,
कभी कभार बोल देता है, या कभी कभार आपकी ही नेगेटिव स्टोरी पेपर में छपती है तो उसको वापस रीट्वीट कर देता है, या उस स्टोरी को उठा के सोशल मीडिया पे कुछ बोल देता है, बट खुद से ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करता है। परसिस्टेंट ज्यादा डेंजरस है। ये क्या करता है, खोद खोद के स्टोरीज निकालता है आपके बारे में नेगेटिव, और कॉन्स्टेंटली आपके पीछे पड़ा रहता है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि विद इन परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट ये किस टाइप का आदमी है, एडिटोरियलाइजर है या डिसेमिनेटर है। दोनों टाइप का हो सकता है। एडिटोरियलाइजर वो आदमी होता है, सबसे पहले डिसेमिनेटर बता दो। डिसेमिनेटर वो टाइप का आदमी होता है जो खाली एक एग्जिस्टिंग स्टोरी को उठाता है और रीट्वीट करता है। तो आप, ही विल कीप लुकिंग, परसिस्टेंट वाला है तो ही विल कीप लुकिंग फॉर योर नेगेटिव स्टोरीज, कुरेद के निकालेगा और फिर उसको रीट्वीट करेगा, रीशेयर करेगा, रीपोस्ट करेगा। अगर वो एडिटोरियल, अगर वो नॉन परसिस्टेंट है तो जब वंस इन अ वाइल आपकी कोई नेगेटिव स्टोरी आ गई तो उसको डिसेमिनेट कर देगा। अगर परसिस्टेंट वाला है और एडिटोरियलाइजर है तो सबसे डेंजरस है, बिकॉज ये वो आदमी है जो आपकी नेगेटिव स्टोरी निकालेगा, फिर उसके ऊपर अपने दो लाइंस ऐड करेगा। यू नो ही विल ट्राई टू यू नो कीप क्रिएट अ नेगेटिव परसेप्शन सेइंग दैट देखो ये स्टोरी न्यूज़पेपर में छपी थी या बड़े किसी पब्लिशर में छपी थी, मेरे साथ भी बहुत बुरा हुआ था, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ बुरा हुआ, ये ब्रांड खराब है। ही विल क्रिएट अ परसेप्शन, वो उस पर अपना एक व्यू डालेगा उस स्टोरी को और नेगेटिव दिखाने के लिए, एंड ही विल कीप पुटिंग दिस। सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए ये जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं कौन से लेवल में बैठता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नॉन परसिस्टेंट है, डिसेमिनेटर है, एक दो बार रिट्वीट करके छोड़ देता है तो जाने दीजिए, फॉरगेट द होल थिंग। नॉन परसिस्टेंट है, एडिटोरियलाइजर है, एक दो बार करके छोड़ देता है तो छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए। हाँ, बट अगर परसिस्टेंट है, बार बार आता है, डिसेमिनेट करता है, एडिटोरियलाइज करता है, दिस इज द गाय दैट यू नीड टू स्पीक टू। तो सबसे पहले ये, एंड दिस इज नॉट लाइक अ होली ग्रेल और मैंडेट, दीज आर जस्ट सम थिंग्स दैट आई हैड क्रिएटेड while I was doing crisis management for some brands, and I realized that ये खाली फ्रेमवर्क है, एग्जैक्टली ये नहीं फॉलो करना है, इसमें कुछ सही गलत नहीं है, इसमें आपको आपका इंटेलिजेंस यूज करना है एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो, हु टू एड्रेस एंड हु टू लेट गो। ये चीजें, इसकी आपको एक यू हैव टू बिल्ड अ नैक फॉर दिस, कि किसको एड्रेस करना है, किसको छोड़ देना है। नाउ आई विल कम टू टूल्स। गूगल अलर्ट्स इज अ गुड टूल। ओ सॉरी, एक पॉइंट मैं भूल गया था पिछले स्लाइड पे। अगर एडिटोरियलाइजर है या डिसेमिनेटर है, परसिस्टेंट है, द वन थिंग दैट यू डेफिनेटली नीड टू डू इज मीट दिस गाय ऑफलाइन। उसको ज्यादा सॉल्यूशंस, सजेशंस, कम्युनिकेशन मत दीजिए। ही इज ऑलरेडी एंग्री, यू डोंट नो, you may or may not know what is the reason for his anger. The important thing is that you take the conversation offline. Don't respond to him online. फोन पे बात करिए, मिल लीजिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों का एंगर बहुत ज्यादा होता है, दे कीप सेइंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट यू, नेगेटिव थिंग्स। कभी कभी आप उनको बोलते हैं कि यू फाइनली कॉल देम एंड यू टेल देम सॉरी, वी आर रियली सॉरी, आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, but your feedback is taken and I will share it with our R&D team, our marketing team, and I'll ensure कि this will be taken care of. कभी कभी कंज्यूमर को ना इतना बोल दो तो वो खुश हो जाता है। आई मीन ही जस्ट वांट्स टू बी हर्ड, सो ही फील्स लाइक अच्छा ठीक है, there's someone to hear me out, it's a good thing, and he will let it go. कभी कभी ज्यादा हुआ तो आप उनको एक्चुअली मिला भी सकते हैं, genuinely tell them कि आपका फीडबैक बहुत वैलिड है, why don't you meet our R&D head, marketing head, or why don't you meet the CEO if that's possible. And when he's able to give valid feedback, तो उसे भी अच्छा लगता है कि yes, I have created a dent in how this business is happening. वो भी खुश हो जाता है, आपको भी अच्छा feedback. Tools. Now there is various kinds of tools that are available. These are the names of some of the market tools which are available, uh, and they will cost you anything, say between. It depends on how much negative conversation or how much total conversation uh, comes out about, how many mentions happen about the keywords that you give them every month. If it's very low, then any tool will work with you for say about 25-30,000. If it's very high, extremely high, you're a banking application, something like that, then it may go up to 2.5-3 lakhs. बैकएंड में ये टूल्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये ऊपर आप लेफ्ट पे देख रहे हैं, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे द वेब है। एनीथिंग दैट्स बीइंग सेड अबाउट यू इन द वेब इज डिफाइंड बाय कीवर्ड्स, और एक वो सारे कॉन्वर्जेशंस एक आर्किटेक्चर में जाते हैं जहाँ पे वो टूल खुद उन सारे मेंशंस को डिवाइड करता है बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव। सो टूल आपके सारे मेंशंस लेता है और खुद ही अपना एनालिसिस करता है कि इसमें जितने भी मेंशंस आपके हुए हैं
इसमें से सोशल मेंशंस कितने हैं और न्यूज़ में कितने आए हैं, और फिर उसके अंदर सेकंड लेवल ऑफ एनालिसिस करता है कि इसमें से पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल कितने हैं। और ये भी देखता है ये मेंशन कौन सी तारीख को हुआ था, कौन से डोमेन में पब्लिश हुआ था, हेडलाइन क्या थी, यूआरएल क्या था, स्टोरी टाइप क्या है, समरी क्या है, ये सब वो टूल करता है। नाउ यू कैन, a lot of these tool companies also have an executive who does a QC on this manually and gives you a daily graph saying, daily report saying कि this is what's being said about you. इन्हीं टूल्स का एक एडवांस वर्जन भी आता है, आप एक एडवांस वर्जन भी सेटअप कर सकते हो। इस तरह कुछ दिखता है, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, बट टिपिकली कॉन्वर्जेशंस ब्रांड खींचता है और फिर एक डेली रिपोर्ट जनरेट करता है, या फिर जितने कॉन्वर्जेशन आपके बारे में हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली अलग अलग बकेट्स में चले जाते हैं कि सम पीपल आर आस्किंग यू अबाउट आपका स्टोर किधर है, या फिर आपके प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, या फिर मुझे होम डिलीवरी यहाँ पे चाहिए, या फिर मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, कंप्लेंट्स है, अदर्स है। सो ऑटोमेटिकली टूल डिवाइड कर देता है आपके सारे कॉन्वर्जेशंस को, इन बकेट्स में डाल देता है, और फर्स्ट लेवल रिस्पॉन्स खुद ही दे देता है, सेइंग दैट यू नो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज देता है, या फिर एक एग्जीक्यूटिव होता है जो इनको फर्स्ट लेवल रिस्पॉन्स देता है। अगर उसको नहीं पता होता है तो फिर वो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से लेके रिस्पॉन्स दे देता है। एंड इसके कुछ इस तरह से दिखते हैं टूल्स के ग्राफ्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल सेंटिमेंट, कहाँ से आया है ये सेंटिमेंट, ब्लॉग से, फोरम से, ट्वीट्स वर्सेस रीट्वीट्स कितने हैं, कौन से टॉप 10 साइट्स है यहाँ पे नेगेटिव आया है। आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं डेट्स डाल के, आपको खाली न्यूज़ देखना है, खाली सोशल मेंशंस देखने हैं, उनके ग्राफ देख सकते हैं। आप डे वाइज रिपोर्ट्स देख सकते हैं, कौन से तारीख को कितना नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल हुआ है। एंड दिस इज हाउ यू शुड मैनेज योर क्राइसिस। That's about it from me on from the presentation. I'm just gonna go off the presentation. बहुत सारे ब्रांड्स के साथ क्या होता है, कुछ नेगेटिव कहा ही नहीं जाता है, so there is nothing in media। ज्यादा से ज्यादा कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, बट ये ब्रांड के खुद के सोशल मीडिया पे आते हैं, तो आप खुद ही सोशल मीडिया पे जाके इनको रिस्पॉन्ड करके क्लोज कर सकते हैं। आप मतलब आपका खुद सोशल मीडिया मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आपके बारे में बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज में बहुत सारा नेगेटिव लिखा जाता है, देन आप न्यूज आर्टिकल्स में जाके भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आप उन आर्टिकल्स के नीचे अगर जगह है वहां पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, या फिर आप उस जर्नलिस्ट के पास भी जा सकते हैं एंड उस जर्नलिस्ट को बोल सकते हैं कि आपने जो न्यूज स्टोरी कवर की है ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है, एंड दीज आर द फैक्ट्स बिहाइंड इट एंड दिस इज हाउ यू शुड करेक्ट इट। सो बोथ द ऑप्शंस आर अवेलेबल।